Hello, everyone. Some important questions for board exam 2025 based on electrostatics, means electrostatic potential and capacitance. Okay, आज आप स्टडी करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम 2025. ये सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी आपने डिटेल स्टडी तो कर ही रखा है. बेस्ड ऑन electrostatic potential and electrical capacitance. Okay, all students, let's see question number first. अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड. मोहित जी, the angle between equipotential surface and electric field lines. You know that direction of electric field always normally and perpendicular to the surface of equipotential surface. The angle between equipotential surface and electric field lines. You know that equipotential surface, direction of electric field always normally or perpendicular to the surface. So theta is equal to 90 degree. Correct option C. That's clear. Next, an alpha particle is accelerated with a potential difference 10 raised to the power 6 volt. The kinetic energy of the particle will be, you know that W is equal to QV. It is all form of energy is equal to amount of work done. Okay, alpha particle twice of He4 is equal to, means alpha particle to alpha twice of QP twice of E. Twice of E to 10 raised to the power 6 volt. So 2 into 10 raised to the power 6 joule. So sorry, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10 raised to the power 6 को हम इंक्लूड करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करेक्ट ऑप्शन. दैट्स क्लियर. सेकंड क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन. The relation between electric potential and distance x represent as follows. B is equal to 5x square plus 10x minus 9 volt. The value of electric field at x is equal to 1. So you know that is equal to minus dV upon dx minus d upon dx. 5x square plus 10x minus 9. Differentiate with respect to x. Minus as it is, 5 as it is, differentiation of x square 2x. So 10x, so 10 as it is, differentiation of x 1, 9, 0. At x is equal to 1 meter. So 10 plus 10 minus 20 volt per meter. Your correct option. Okay. -20 आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. इक्वल टू -20 वोल्ट पर मीटर, टेकिंग मॉड इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर. देखिए -20 अवेलेबल होता तो हम -20 करते, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम मॉड ले लेंगे. तो क्या आएगा आपका 20 वोल्ट पर मीटर. दैट्स क्लियर. ओके. नेक्स्ट, the dimension of 1/2 epsilon naught E square. Dimension बताना है. तो you know that Q from basic theory, energy density per unit वॉल्यूम. तो इसका यूनिट क्या हुआ बेटा? जूल पर मीटर क्यूब. भाई ये रिजल्ट क्या है?
एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर क्यूब, जूल m1 l2 t माइनस 2 l3, तो m1 l माइनस 1 माइनस 2 m1 l माइनस 1 t माइनस 2, करेक्ट ऑप्शन सी। ये इतना आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया जा रहा है, बाकी आप डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपका बेसिक थ्योरी क्लियर है। नेक्स्ट the electric potential of the earth is considered to be zero because the earth is, you know that from basic theory, capacity of earth as infinite, the potential क्या होगा बेटा उसका, zero, potential zero when a charged body is connected to earth, total charge on body removed to the earth because earth behave as an isolated spherical conductor, original shape ellipse, elliptical, but for study spherical, earth is an isolated spherical conductor, a conductor, your option a conductor, that's clear। देखिए सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। What will be the energy stored? Very good. Stored, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्टोर वर्ड के साथ है, stored in a capacitor, okay, of capacitor C when its potential is increased up to V, so you know that half CV square from basic theory, आपको बता रखा है ये, okay, correct option B। Next, the distance between plates of a parallel plate capacitor, the distance between the plates of a parallel plate capacitor is D, their area is capital A, means area of plate capital A, a sheet of thickness small t is less than D, distance between parallel plates of parallel plate capacitor D, जो मीडियम प्लेस किया है उसका थिकनेस T है, T इज लेस देन स्मॉल d मींस पार्शियली फिल्ड किया गया है, of a material of dielectric constant K is placed between its plate, its capacitance becomes, so C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K, K is also denoted by epsilon R, आपको K दे रखा है, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, ये आपका बेसिक रिजल्ट है। अब ऑप्शन चूज करिए आप, यहां से आप माइनस टी कॉमन ले लीजिए, माइनस टी, ये प्लस 1 माइनस 1 बाई K, तो योर करेक्ट ऑप्शन टी, दैट्स क्लियर। टाइप करा रखा है, ये इंपॉर्टेंट भी, सब डिटेल जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है आपको, है क्या कह रहे हो, ओके नहीं कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। Change in electric potential, change in electric potential with distance in the electric field of intensity E equal to 0 will be, तो देखिए E equal to 0, you know that E equal to minus dV upon dr, so dV equal to minus E dot of dr, E equal to 0, integrate both side, so V equal to constant, so V equal to constant, correct option D, बता रखा है सब आपको। Next, the flux passing through an equipotential surface will always be perpendicular to the surface, भी करेक्ट है। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज नॉर्मली और परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ स्मॉल ए, चार्ज क्यू एट इट्स ईच कॉर्नर, देखिए स्क्वायर
चार्ज एट ईच कॉर्नर Q। तो सेंटर पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आपका सेंटर देखिए भैया, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ये सेंटर हो गया। साइड क्या है स्क्वायर का, स्मॉल ए। डायगोनल AC इक्वल टू √2a इक्वल टू क्या होगा, BD। बेसिक रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल V इक्वल टू KQ अपॉन R। R मींस डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग चार्ज। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ईच कॉर्नर AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू हाफ ऑफ AC। R से डिनोट करें हम इसको, AC √2a/2 a/√2। ओके, V1 V2 V4 KQ upon R, because charge on each corner same, distance of steady point from each corner same, so potential due to all charges are equal to each other. Net potential V1 plus V2 plus V3 plus V4 means 4V1 4KQ upon R। अब आपके ऑप्शंस 1 अपॉन एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R की वैल्यू पुट कीजिए a/√2। तो देखिए 4 4 कैंसिल, √2 न्यूमरेटर में आएगा, तो √2 Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, √2 Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो योर करेक्ट ऑप्शन A। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, two equal capacitors are connected with potential V in parallel combination on connecting them in series combination after separating। तो देखिए two equal capacitors connected with potential V in parallel combination। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं पोटेंशियल क्या है, V। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम रहेगा ना भाई। On connecting them in series combination after separating, अब इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में potential at 3 plate will becomes doubled। Charge will increase on the free plates, the charge will on those plates which are contact, more energy will be stored in the system। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बात नहीं भाई। Potential at the free plates will becomes double। बार पॉज करना। तो देखिए ऑन कनेक्टिंग देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन आफ्टर सेपरेटिंग the potential V after separating, total potential on free plates 2V, just double। the first option A, that's clear। Next, if the 4 plates of a capacitor are arranged as shown in figure, the capacitance of the capacitor will be, इसमें फिगर मिस है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह की कंडीशन है, ओके। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इन दिस केस पॉइंट ए कनेक्टेड पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो दिस प्लेट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट नेगेटिव चार्ज। तो 3 कैपेसिटर C1 C2 C3। तो C1 C2 C3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, देयर कॉम्बिनेशन। Positive plate of C1 connected to point A, positive plate of C2 connected to point A,
positive plate of C3 connected to point A. All positive plates means first plate of capacitors are connected to point A. Similarly, second plate connected to point B. Parallel combination. So C is equal to equivalent capacitance C1 plus C2 plus C3, 3C1. So 3 epsilon 1 B. That's clear. Okay. Okay. Next. A unit positive charge is taken from one point to another point over an equipotential surface. For equipotential surface, V1 is equal to V2. Amount of work done Q, VB minus VA means V2 minus V1 equal to V. Amount of work done क्या हो गया भाई? 0. So equipotential work done on the charge. Work is done by the charge. Work done is constant. No work done. So correct option D. Amount of work done 0 होगा तो no work done. Next. A positively charged conductor. A positively charged conductor always remains at positive potential. Always remains at zero potential. Always remains at negative potential. Maybe at positive potential, zero potential, or negative potential. A positively charged conductor the answer may be at positive, zero, or negative. कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है. सपोज कीजिए ये कंडक्टर, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो गया? पॉजिटिव. इसके नियर अबाउट अनदर इलेक्ट्रिक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, तो यहाँ क्लोजर सरफेस पर कौन हो जाएगा? नेगेटिव. तो ये कौन सा पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा? नेगेटिव. बिटवीन देम एट एनी पॉइंट पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है. द पॉसिबिलिटी ऑप्शन डी. That's clear. When intensity of electric field exceeds the value of E equal to 3 into 10 raised to the power 6 volt per meter, air ionized in Coulomb unit, a maximum of what charge can be given to a spherical conductor of diameter 5 meter. देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इंटेंसिटी पर एयर, उसके सराउंडिंग में जो एयर है वो आयनाइज्ड हो जाएगी. तो हम एक स्फीयर है जिसका डायामीटर 5 मीटर है, उसको कितना मैक्सिमम चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं? EFI ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर Q अपॉन आर स्क्वायर. तो Q इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन K, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6. डायामीटर 5 मीटर, तो रेडियस क्या हुआ? 2.5 आर स्क्वायर. 2.5 इंटू 2.5 के 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9. 3 3 जा 9, 3 टाइम्स कैंसिल होगा. ये क्या हो गया बेटा? 6.25 टू 10 रेज़ टू दी पावर -3 अपॉन 3. दैट्स क्लियर. ओके. तो देखिए अप्रॉक्स नियर अबाउट देखें तो 6.25 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3. तो नियर अबाउट आपका ये आंसर भी होगा बेटा. ओके. नेक्स्ट, ऑन रोटेटिंग a point charge having a charge q around a charge capital Q in a circle of radius r, the work done will be. तो देखिए, on rotating a point charge having a charge q around capital Q. तो देखिए ये अराउंड कैपिटल Q, ये स्मॉल q रोटेट किया जा रहा है. तो इसकी हम बात करें
तो ये क्या होगा बेटा, इसको पोटेंशियल सरफेस, इसको पोटेंशियल सरफेस इमेजिन कर सकते हैं बाय गाउस थ्योरी। तो डीवी क्या होगा बेटा, 0। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस वी ए, क्यू नॉट डीवी। तो 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 0। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, 2 point charges plus q and minus q are placed at a definite distance, then at the midpoint between them, at the midpoint between them, minus q plus q, definite distance। तो इसके मिड पॉइंट पर, हम ये मिड पॉइंट की बात करें, ये डिस्टेंस आप r अज्यूम कर लीजिए, ओके। तो यहां पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तो 0 होगा भाई, v इक्वल टू ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 0। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है, डी में नॉट 0 है पोटेंशियल, नॉट 0। तो आपका आंसर ए एंड सी में से होगा, एनी वन ऑफ टू फ्रॉम ए एंड सी। अब EFI की बात करें तो देखिए EFI ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E1 इक्वल टू AQ अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू E2। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, ट्वाइस ऑफ E1 ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन R स्क्वायर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, एक ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन R स्क्वायर। तो योर करेक्ट ऑप्शन सी। क्लियर। ये आपको मैंने सॉल्व इसलिए करके बताया, समझाने की वजह से, एक्सप्लेन करने नहीं, डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं आप। नेक्स्ट, इक्वल चार्ज इज गिवन टू स्फीयर्स of different radii, the potential will be potential KQ upon R for spheres, चार्ज सेम है आपका, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा पोटेंशियल कम होगा, रेडियस कम होगा पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो देखिए मोर ऑन द स्मॉल स्फीयर, ठीक है, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 then E1 is less than V2। जिसका रेडियस स्मॉल होगा उस पर पोटेंशियल मोर होगा विद रेस्पेक्ट टू अनदर, तो मोर ऑन द स्मॉल स्फीयर। योर करेक्ट ऑप्शन ए। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। अब देखिए, two opposite charges of magnitude q are kept at a distance 2d। two opposite charges of magnitude q are kept at a distance of 2d from each other, the potential at midpoint between them will be 0। अभी आपको बताया था, देखिए टू चार्जेज हैं अपोजिट चार्जेज, मैग्नीट्यूड क्यू गिवन है, मिड पॉइंट के डिस्टेंस क्या हुआ डी डी, या पोटेंशियल 1 प्लस V2, 1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। भाई चार्ज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज का नेगेटिव साइन इंक्लूड करना होगा, तो 0 पोटेंशियल क्या होगा 0। दैट्स क्लियर। अब देखिए, let's see the ratio of momentum of an electron accelerated from rest by a potential difference 100 volt, potential difference, accelerated potential 100 volt, and n a particle is the ratio of momentum of an electron accelerated from rest by a potential difference of 100 volt
एन, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक, अभी अपन क्या कर लेंगे, शायद अल्फा पार्टिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल। ओके, ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा ही दे रखा है, तो वो अल्फा पार्टिकल होगा। तो मोमेंटम, द रेशो ऑफ मोमेंटम of an electron accelerated from rest by a potential difference 100 volt is equal to twice of me, relation between kinetic energy and linear momentum, energy twice of qv, twice of qv। ओके, तो देखिए बेटा, P is directly proportional to m into q, पोटेंशियल तो सेम है, तो P अपॉन P अल्फा me qe m अल्फा q अल्फा। तो देखो एम ई तो एज इट इज रहने दें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई एम अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, दैट्स क्लियर। स्मॉल ई से स्मॉल ई कैंसिल, रूट एम ई अपॉन 2 एम अल्फा, ऑप्शन डी, दैट्स क्लियर। व्हेन अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड 1 volt, then its kinetic energy will be proton accelerated, the kinetic energy qv, charge on proton e, potential 1 volt, so 1 electron volt, the kinetic energy of proton 1 electron volt, that's clear। the mass of a particle is m and its charge is q, the mass of a particle is m and mass and charge q, this particle is accelerated by a potential difference v volt, its energy will be qv, w इक्वल टू qv से बेटा। ओके ओके, the kinetic energy of an electron accelerated by a potential difference 100 volt will be the kinetic energy of an electron, the kinetic energy W इक्वल टू QV, इलेक्ट्रॉन V, पोटेंशियल कितना है बेटा 100 वोल्ट। अब जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये तो किसमें आ गया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर कन्वर्टिंग इन जूल E 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम into वोल्ट, तो 1.6 into 10 raised to the power minus 17 जूल, तो 1.6 into 10 raised to the power minus 17 जूल, ऑप्शन ए, that's clear। Next, the electric potential on the surface of an atomic nucleus of radii, atomic nucleus, you know that according to Bohr's model, electrons are continuously revolving around the nucleus in particular orbits, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेगा, तो उसके लिए पोटेंशियल ऑन द सरफेस AQ अपॉन R, K 9 into 10 raised to the power 9, एटॉमिक न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इसमें बन नहीं है, तो Q इक्वल टू क्या होगा Ze, भाई न्यूक्लियस Zx है, तो चार्ज इन न्यूक्लियस Ze तो होगा एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो Z की वैल्यू अभी पुट कर देंगे हम, ऑप्शन से आइडिया लगा लेंगे, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 रेडियस 9 into 10 raised to the power minus 13 सेंटीमीटर,
में कन्वर्ट करेंगे -2, तो देखिए 9 से तो 9 कैंसिल हो गया भैया। ओके, ये -15 न्यूमरेटर में लेंगे, +15 9 24 -19, तो 10⁵ और ये 1.6, अब 10⁵5। ओके, तो जेड इक्वल टू अपन 50 ले लें, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये इसमें क्वेश्चन में मिस है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, तो 50 ले लें यहाँ, तो 50, तो देखिए S0 से डेसिमल पॉइंट 16 × 5 80 का 0 यहाँ इंक्लूड करें तो 10⁶, तो 5 × 10⁶ वोल्ट, सॉरी 8, 580 हुआ ना बेटा, 8, तो 8 × 10⁶ वोल्ट, ऑप्शन बी। ओके, वो जेड के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिस है, तो हमने जेड 50 ली। ओके, बाकी प्रोसेस यही रहेगा, कोई भी न्यूक्लियस हो क्वेश्चन गिवन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए, जूल कूलाम इंटू वोल्ट, तो W इक्वल टू QV, कूलाम वोल्ट इक्वल टू जूल, करेक्ट, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। The electrostatic energy of the system on bringing an electron towards the electron, electrostatic potential energy of the system on bringing an electron towards another electron, -E R, bringing towards each other, इस तरह से ला रहे हैं, R क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो U KQ1 Q2 अपॉन R, पॉजिटिव रिजल्ट हो गया, K² R, R डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो योर करेक्ट ऑप्शन बी, दैट्स क्लियर। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, the value of potential on a point due to a point charge will be, the value of potential on a point due to a point charge will be, you know that potential due to point charge KQ upon R, so V is inversely proportional to R, inversely proportional to the distance, correct option C, correct option C. One capacitor is charged by a battery and then the battery is disconnected on sliding a dielectric plate between the plates of the capacitor. Okay, देखिए बेटा, one capacitor is charged by a battery and then the battery is disconnected on sliding a dielectric plate between the plates of the capacitor. एक कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ये कंडीशन हो गई। अब इसके बिटवीन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है। ओके ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम रखेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो प्लेट्स पर जो चार्ज है उसके लिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, E इक्वल टू अपॉन डी, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E डिक्रीज हुआ तो एनर्जी भी डिक्रीज हुई। तो देखो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट डिक्रीजेज एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द प्लेट इंक्रीजेज, potential difference on the plates increase
Storage energy decrease, but there is no change in the charge on the plates. Potential difference on the plate decrease, store energy decrease, but there is no change. तो करेक्ट ऑप्शन सी। तो सारे मैंने पहले ही पॉइंट बता दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, चार्ज पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो इंडक्शन से हुआ है। यू नो दैट ड्यू टू इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूस्ड चार्ज is equal or approx equal to the inductor charge. So your correct option C. That's clear. Let's see. The potential energy of a charged capacitor is obtained from which of the following formula? You know that energy, potential energy of capacitor half CV square. Okay. So option के according Q is equal to CV. Okay. तो देखिए V is equal to Q upon C. तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, करेक्ट ऑप्शन डी। अब ये समझ में नहीं आ रहा आपको? ओके। अरे भाई आपको कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी इज प्रेजेंट ऑन ईच चार्ज कैपेसिटर। The energy is present on each charged capacitor at positive charge, at both positive and negative, area between the plates, ends of the plates of capacitor. तो जो एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी आपका स्टोर होता है उसके बारे में पूछ रहा है ये कि पॉजिटिव चार्ज पर होगा या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर होगा या एरिया बिटवीन द प्लेट्स, एंड्स ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी। वो कैसे आप देखिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। Q इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन डी। तो V इक्वल टू ई डी, इक्वल टू ई डी। तो ई स्क्वायर क्या हो गया बेटा? हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर टू ई डी। ई डी किसको डिनोट करता है? वॉल्यूम को। तो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एरिया आ गया कि नहीं आ गया? यहां आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एरिया बिटवीन द प्लेट्स। दैट्स क्लियर। When two charged conductors are mutually contacted, then ये contacted की जगह connected होगा। ओके, when two charged conductors are mutually connected, टू कंडक्टर्स हैं को कनेक्ट किया गया है, आपस में कनेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ बोथ द कंडक्टर्स इज कंजर्व्ड, द चार्ज ऑफ बोथ द कंडक्टर्स इज कंजर्व्ड, बोथ चार्ज एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड, रिजल्टेंट पोटेंशियल। देखो two charged conductors are mutually connected to each other. So you know that conservation of charge is a fundamental law of nature. तो चार्ज का तो कंजर्वेशन रहेगा, एनर्जी लॉस भी हो सकता है। अगर दोनों का पोटेंशियल बिफोर एंड आफ्टर कनेक्टिंग इक्वल है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। तो फिर आपका क्या है? The charge of both the conductors is conserved. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लेकिन इस
भाई टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। ये कह रहा है द चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर्स इज कंजर्व। अब ये ऑप्शन को भी देखें एक बार। रिजल्टेंट पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू द मीन ऑफ इनिशियल पोटेंशियल्स, मीन ऑफ इनिशियल पोटेंशियल्स। ऑप्शन का मतलब क्या है? इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है भाई। कनेक्ट करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड बोथ कंडक्टर्स बिकम्स एट कॉमन पोटेंशियल सेम पोटेंशियल, वो तो सही है। लेकिन V तो क्या होगा? V1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, टू कंडक्टर्स हैं। तो अब हमें कैपेसिटी तो मालूम नहीं है। When two charged conductors are mutually connected to each other, अगर दोनों कंडक्टर्स आइडेंटिकल हैं, उनका कैपेसिटेंस सेम है, तो ये डी ऑप्शन हो सकता है भाई। C1 इक्वल टू C2 हो जाए तो सॉल्व करेंगे तो V1 प्लस V2 Y2, लेकिन वो कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोथ ऑप्शन में बोथ चार्ज एंड एनर्जी आर कंजर्व, टोटल एनर्जी ऑफ बोथ द कंडक्टर्स, टोटल एनर्जी ऑफ बोथ द कंडक्टर्स कंजर्व, तो फिर ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है चार्ज कंजर्व रहेगा, ऑप्शन बी। ओके ओके। द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर इज punctured is called the potential gradient at which the dielectric constant। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है आपका? इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर। ओके। द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द dielectric constant of a capacitor is punctured is called the potential gradient at which the dielectric constant of a capacitor is equal to C equal to Q upon, बात करें dielectric capacity। तो देखिए द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द dielectric constant of a capacitor is punctured called, तो ये आपका बेसिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके। तो नॉर्मली हम इसको इक्वल टू V प्रेजेंस ऑफ मीडियम अपॉन, तो फॉर मीडियम V इक्वल टू V अपॉन K, तो V K D। तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड m इक्वल टू अपॉन सॉरी अपॉन, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ बिहेव करें कि मीडियम की इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड 1 अपॉन के टाइम्स ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो मीडियम डिक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पर डिक्रीज करेगा तो ये किसका बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ही तो अपोज करता है ना, तो डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इस तरह से होगा। दैट्स क्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप के को कहेंगे,
ये कहाँ आया है? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में है तो ये इसको डिक्रीज ही तो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा है। भाई मल्टीपल में क्या आता तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देते। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किधर गया? ए ऑप्शन। लेकिन न्यूमरेटर में तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज यानी अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का बिहेव करेगा ना। तो मोर करेक्ट आंसर डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दैट्स क्लियर। The capacitance of a parallel plate capacitor. The capacitance of a parallel plate capacitor is C. If the distance between its plate is halved, then the value of capacitance will be. देखो, a parallel plate capacitor epsilon naught A upon distance between plates halved, तो C dash epsilon naught A upon D by 2 क्या हो गया? Twice of C. Correct answer D. That's clear. When a material of dielectric constant K, when a material of dielectric constant K is kept in place of dielectric air in a capacitor, then capacitance will be, देखो, when a material of dielectric constant K is kept in place of dielectric air in a capacitor, then the capacitance will be, देखो, you know that D epsilon naught A upon D, presence of vacuum or air, presence of medium epsilon naught K A upon D, क्या हो गया बेटा ये KC, तो increase K times, that's clear. The capacitance of a parallel plate capacitor increases on the parallel plate capacitor epsilon naught A upon D directly proportional to A, C inversely proportional to D. आप एरिया इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज करेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब आंसर देख लीजिए आप, इंक्रीजिंग इट्स एरिया, क्या कहा गया ना। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज D. Metal plate of thickness D by 2 is kept between the plates of the capacitor, then the capacitance will be, देखो भाई, equal to epsilon naught A upon minus T plus T upon, okay, metal plate है तो metal for metal K equal to infinite T equal to D by 2, ये पोर्शन तो जीरो हो गया, epsilon naught A upon minus D by 2 क्या हो गया? 2 epsilon naught A upon D, तो डबल हो गया कि नहीं हो गया? remains unaffected, becomes half, becomes zero, become double. तो ये twice of C naught. C naught means in presence of air initially condition में naught आप लिख सकते हैं naught A upon ये double. Option D. When the capacitors of capacitance C1 and C2 are arranged in parallel combination, so you know that in parallel combination P is equal to C1 C2 upon C1 plus, पैरेलल में क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट तो आएगा। सॉरी मैंने सीरीज का कर दिया बेटा, सॉरी सीरीज का कर दिया। पैरेलल तो C इक्वल टू C1 प्लस, वो मैंने सीरीज का कर दिया था, ये सीरीज में होता था 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस, तो करेक्ट ऑप्शन C1 प्लस C2, पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, पैरेलल में, ये रिजल्ट आपका सीरीज का। A DC potential difference of 100 volt is given to 5 capacitors of capacitance 10 millifarad each. 10 millifarad, डायग्राम में माइक्रो है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइक्रोफैरड ही होना चाहिए। ओके, आंसर भी ऑप्शंस भी माइक्रो में, तो ये माइक्रो ही है। These are arranged according to circuit in the figure, then the resultant capacitance P upon Q is equal to R upon S,
Wheatstone bridge in balancing condition, no charge flow, current flow through the diagonal side. ये यूजलेस हो गया, ये यूजलेस हो गया, तो ये दोनों सीरीज में 10 and 10 5, 10 and 10 5, 5 and 5 both are in parallel 10. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो गई आपकी 10. ये क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 5 माइक्रो 5 and 5 10 माइक्रोफैरेड. दोबारा देखें 10 आया था ना. देखो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S. Wheatstone bridge in balancing condition, no charge flow through the diagonal side. इस डायगोनल साइड को रिमूव करेंगे तो 10 on 10 इस तरह से हो जाएगा. ओके, आंसर तो आपका बता ही दिया हमने, 10 माइक्रोफैराड आएगा. 10 10 10 10 ये दोनों सीरीज में, तो क्या हो गया 5 ए एंड बी 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड, तो इक्विवेलेंट 5 plus 5 10 माइक्रोफैराड. दैट्स क्लियर. ओके, नेक्स्ट, the total capacitance of capacitors C1 C2 C3 are connected in series. और सीरीज, तो सीरीज में रेसिप्रोकल चलेगा भाई, 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. टेकिंग एलसीएम C1 C3, तो C2 3 1 C3 1 2. रेसिप्रोकल है तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, C1 C2 अपॉन 1 C2 plus C2 plus C3 1. द टोटल कैपेसिटेंस ये होगा, तो इसमें आपका आंसर आ गया नन ऑफ दीज. आप बाई मिस्टेक ये कर सकते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा. ये 1/C इज इक्वल टू 1/C2 ऐसे है ये. तो यहाँ आप सी इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, लेकिन वो तो इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना, तो ये रिजल्ट आएगा. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दीज. The equivalent capacitance between A and B in the following figures will be the value of all the capacitors. The value of all the capacitors is in microfarad. यहाँ में all the capacitors हो गए, ये माइक्रोफैरेड में सारे. तो आपको इक्विवेलेंट देखो, P अपॉन Q कितना हुआ 1/2 और R अपॉन S 1/4. The equivalent capacitance between point A and B, the following figure will be. Okay. अब आपको ये बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फाइंड करना होगा. ओके, अब ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. हाँ देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ 2 की जगह 4 माइक्रोफैराड होगा. तो देखो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S अपॉन Q 3/6 4/8 1/2 इक्वल टू 1/2. on bridge in balancing condition, diagonal side useless, no charge flow. So 3 and 6 both are in series. 4 and 8 both are in series. तो देखिए दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, 3 अपॉन 3 plus 6 अपॉन 9 2 माइक्रोफैराड. किससे, ये किससे फाइंड किया है हमने, C1 C2 अपॉन 1 प्लस 4 सीरीज कॉम्बिनेशन. इसी तरह से इनका 4 इंटू अपॉन 4 प्लस 8 4 इंटू 8 अपॉन 12/3 both are in parallel. both are in parallel. कितना है 2/3. तो C इक्विवेलेंट 2 plus 8/3 6 plus 8/3 क्या हो गया 14/3 माइक्रोफैराड. दैट्स क्लियर, करेक्ट ऑप्शन. ओके.
ओके बेटा, सारे क्वेश्चन आपको ठीक। ये क्वेश्चन समझ आ गया था ना तेजस अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से चल रहा है, पहले भी उस टाइम काफी अपन ने किया था इस पर। देखिए, नाउ लेट्स सी, draw a diagram of equipotential surface for a single charge. सिंगल चार्ज प्लस और माइनस है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यू नो दैट इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज वार्ड्स एट स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज, कोसेंट्रिक स्फीयर्स, कोसेंट्रिक स्फीयर्स आपको थ्योरी में मैंने डिटेल पढ़ा रखा है भैया। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेस है ना, ये कोसेंट्रिक स्फीयर्स। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेसिक थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, दैट्स a surface that has same potential at every point, at each point is called equipotential surface. Direction of equipotential surface is always normally or perpendicular to the surface. Equipotential surfaces never intersect each other. If they can intersect each other, we get two direction of EFI at intersect point, which is not possible. सब बता रखा है। नेक्स्ट, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, if they can intersect each other, we get two directions of EFI, intensity of electric field at intersect point. It is not possible. That's clear? बता रखा है। और अभी भी आपको बताया, potential on the surface of a charge conducting sphere, potential on the surface on the charge conducting sphere of radius 10 centimeter. 10 centimeter means 10 raised to the power minus 1 meter. Potential 10 volt. Find the value of potential at center conducting sphere है. You know that given charge uniformly distributed on the surface at center. Inside the conducting sphere charge 0, EFI 0, EFI 0, तो dV equal to minus E dot of dr. So
0 इंटीग्रेट बोथ साइड b इक्वल टू कांस्टेंट और वैल्यू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू ऑन द सरफेस, जितना सरफेस पर होता है उतना ही तो इनसाइड होगा, इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर कांस्टेंट वैल्यू ऑन सरफेस। तो सेंटर पर भी रिजल्ट क्या होगा, एट सेंटर के क्यू अपॉन आर ही होगा, जो किसके इक्वल होगा 10 वोल्ट के इक्वल। दैट्स क्लियर, किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए। पोटेंशियल EFI 0 होता है कंडक्टर में, पोटेंशियल तो वही रहेगा जो सरफेस पर है। इन चार्ज कैपेसिटर वेयर एंड इन विच फॉर्म इन द एनर्जी स्टोर आ चार्ज कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर इन विच फॉर्म इज द एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ओके। A charge sphere where and in which form the energy, where area of between plates, क्वेश्चन में बताया था आपको, इन फॉर्म ऑफ हाफ CV स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करें हम हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, कैसे भी मेंशन कर सकते हैं। कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज 4 into 10 raised to the power minus 9 coulomb situated at a distance 9 into 10 raised to the power minus 2 meter. The potential at a point due to point charge K 9 into 10 raised to the power 9, 4 into 10 raised to the power minus 9, or 9 into 10 raised to the power minus 2. 9 9 cancel, 9 minus 9 cancel, okay. 10 raised to the power minus 2 numerator मिलेंगे 400 volt. Answer. That's clear. A parallel plate capacitor with air has a capacity of 8 picofarad. 8 picofarad. 8 into 10 raised to the power minus 12 farad. Calculate the capacity of capacitor if the distance between the plates is halved, that's equal to d by 2, and the space between them is fully filled with a substance of dielectric constant K 5. Simple, C dash is equal to epsilon naught A upon D, डायलेक्ट्रिक मटेरियल तो K से मल्टीप्लाई होगा बेटा, D डैश क्या होगा D by 2, एरिया के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेम रहेगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट A by 2, तो ट्वाइस ऑफ KC हो जाएगा ये, K 5 C 8, 80 पिकोफैरड, 80 पिकोफैरड, गॉट इट। 4 प्लेट्स, तो देखिए इन दिस कंडीशन पॉइंट ए कनेक्टेड एट पॉजिटिव बी नेगेटिव पोटेंशियल, तो ए से जो प्लेट पास होंगी उन पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस। थोड़ा डायग्राम छोटा बना हुआ है, अपन इधर बना लें, इस तरह से अलग से बना लें, अलग से ड्रॉ कर लिया, ए एट पॉजिटिव पोटेंशियल एट नेगेटिव पोटेंशियल, तो ए से जो प्लेट्स पास होंगी उन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, प्लेट्स passes at point B acquires negative charge, तो 4 कैपेसिटर we get प्लस माइनस कॉम्बिनेशन, तो देखिए C1 माइनस माइनस नो कैपेसिटर प्लस माइनस सेकंड कैपेसिटर, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 कनेक्टेड टू A, पॉजिटिव प्लेट ऑफ C2 कनेक्टेड टू B, सॉरी A, so both positive plates are connected to point A, so similarly negative plates connected to point B, so parallel combination, equivalent C1 plus C2 both are equal to twice of C1, so 2 epsilon naught A upon D, that's clear, okay। Four capacitors are combined according to figure, the capacitance of each capacitor is 8 microfarad. What would be the equivalent capacitance between point A and B? As shown in figure, determine the equivalent capacitance between point A and B. Capacitor has capacitance 8 microfarad. तो इस तरह के क्वेश्चंस को, जंक्शन पॉइंट्स को आप लेबल्ड करिए, नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4, ओके।
ओके, तो देखिए बेटा, कैपेसिटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब इसका हमें कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल को एनालिसिस करना होगा। देखते हैं। अभी देखते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर बिटवीन 1 एंड 2 के लिए लें, सेकंड कैपेसिटर बिटवीन 2 एंड 3। ओके, 2 एंड 4, थर्ड कैपेसिटर बिटवीन 3 एंड 4 ले लें, बिटवीन 4। अब देखिए, अबव वायर बिटवीन 1 एंड 3, ये कनेक्ट कर दिया भाई, अबव वायर बिटवीन 1 एंड 3, और ये बिटवीन 3 एंड 4। तो 4 के बाद में एक कैपेसिटर यहाँ और कनेक्ट है कि नहीं? हो गया ना, 4 के बाद में एक कैपेसिटर ये ले लिया, ये किधर है? बिटवीन 2 एंड 4, बिटवीन 2 एंड 4। अब ये 4 किससे कनेक्ट हो रहा है वापस? ये कैपेसिटर 3 से, तो ये कहां से कनेक्ट हो रहा है? यहां से। ओके, ओके, और ये पॉइंट बी किससे कनेक्ट हो रहा है? इस 4 से। ये आपका पॉइंट बी हो गया, हो गया। तो देखिए भैया, दिस कैपेसिटर कनेक्टेड टू पैरेलल, दिस कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो गए ना दोनों। ओके, तो देखिए ये सी एंड सी क्या हो गया भैया? 2C। आप ऐसे देखिए, ए बी सी, ये 2C हो गया ना दोनों, ये 2C हो गया ना भाई। हाँ, तो ये सी एंड सी बोथ आर इन पैरेलल टू सी। अब देखिए, दिस प्लेट कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल, तो ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फाइनली पैरेलल हो गया ना भैया, सी 2C, तो सी इक्वलेंट सी प्लस 2C क्या हो गया? 4C। सी कितना है आपका? 8 माइक्रो फेरड, तो 32 माइक्रो फेरड। दैट्स क्लियर? ओके भैया, the capacitance of a parallel plate capacitor with air in between the plates 6 microfarad, air 6 microfarad. Its basic result epsilon naught A upon D. If a layer of dielectric constant of thickness D by 3, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मटेरियल का थिकनेस कितना है? D by 3, मीन्स पार्शली फिल्ड करना है, is kept between the plate, then how much will the capacitance, the electric constant of the material of the layer 4? तो देखिए, T इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके बेटा, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D बाई 3 प्लस D बाई 3, K इक्वल टू 4। दैट्स क्लियर? तो देखिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 12 एलसीएम लीजिए, 12D माइनस 4D प्लस D, 12 एप्सिलॉन नॉट A, देखिए 12D में 8D 9D हो गया बेटा। ओके, तो 3 4 जा 12, 9, ये क्या हो गया बेटा? C नॉट, तो 4/3, C नॉट आपका कितना है? 6 माइक्रो फेरड, तो 3 2 जा 6, 8 माइक्रो फेरड। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? नेक्स्ट, 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 8 picofarad, 4 picofarad are connected in parallel combination.
So they are equivalent. 2 plus 8 plus 4, 14 picofarad. What is the total capacitance? The total capacitance part B. If the combination is connected to a 100 volt supply, calculate the value of charge on each capacitor. You know that in parallel combination, potential difference across all capacitors remains same and equal to the applied potential, but charge different. चार्ज डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो V तो क्या रहेगा? 100 वोल्ट कांस्टेंट। तो Q1 अपॉन V, सॉरी C1V। ओके बेटा, तो C1 कितना है आपका? 2, V कितना है? 100, और पिको मीन्स 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 12, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 कूलम। C2V 4 इंटू 8 into 10 raised to the power minus 12 into 100, 8 into 10 raised to the power minus 10 coulomb. C3V 4 into 10 raised to the power minus 12 to 100, तो 4 into 10 raised to the power minus 10 coulomb. अगर टोटल चार्ज फाइंड करें आप, टोटल चार्ज, तो Q इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू V। इक्विवेलेंट कितना आया था आपका? 14 पिकोफैरड माइनस 12 इंटू 100, तो 14 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 कूलम। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, 4 12 टू 14 इंटू 10 मीन्स योर आंसर करेक्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ a 6 microfarad capacitor is increased from 10 volt to 20 volt. Calculate the increase in its energy. Okay. Q1 half C V square V1 square. Q2 half C V2, कैपेसिटी तो सेम है भैया, तो यू नो दैट फ्रॉम V2 इज ग्रेटर देन V1, डेल U क्या हो गया बेटा? U2 माइनस Q1, हाफ C टू स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, 6 माइक्रो माइनस 6 V2 20, 400 V1 100 300, तो 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 6 इंटू 300, तो 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 जूल। दैट्स क्लियर? That's clear. That's clear. That's clear. Calculate the capacitance of capacitor C. If the total capacitance of the combination between A and B is, calculate the capacitance of C. Equivalent capacitance आपको गिवन है, जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट 15 माइक्रोफैरड, एक कैपेसिटर अननोन है, तो ये फाइंड करना है। तो ये देखिए 10 and 10 in parallel combination, 20 in series with C। भाई C के सीरीज में हो गया ना बेटा, ये तो क्या हो गया? 20 माइक्रोफैरड C, बोथ आर इन सीरीज, तो रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट 1/20 प्लस 1/C। इक्विवेलेंट आपको कितना दे रखा है? 15। ये माइक्रो में, ये भी माइक्रो में, तो C माइक्रो में आ जाएगा, तो C इक्वल टू 1/50 माइनस 1/C, सॉरी 20। दैट्स क्लियर? 20 माइनस 15/15 इंटू 20, तो C इक्वल टू 15 20/5, 60 माइक्रोफैरड। आपका C क्या होगा बेटा? 60 माइक्रोफैरड। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? ओके। 2 point charges 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining these charge the electric potential will be 0? Okay. 5 into 10 raised to the power minus 8 minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb. तो देखिए पोटेंशियल के लिए फर्स्ट कंडीशन, नेट पोटेंशियल विल बी 0 एट एनी पॉइंट। फर्स्ट नीड रिक्वायरमेंट, दोनों चार्जेज का नेचर अपोजिट होना चाहिए तभी 0 होगा। अब 0 के लिए पोटेंशियल के लिए मोर देन वन ऑप्शन, बिटवीन देम भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, तो हम बिटवीन देम सपोज करें,
यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो ये हमने x कंसीडर कर लिया। टोटल डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर, ये 16 माइनस x। तो इसकी बात करें, ये P1 ले लें, P1 इक्वल टू 0 KQ distance of steady point from this charge x, distance of from this charge 16 minus x इक्वल टू 0। ये माइनस है, राइट में चले जाएगा बेटा, k से k कैंसिल होगा, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 8 कैंसिल होगा, 5 अपॉन x 3 अपॉन 16 माइनस x, तो 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x 8x, तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 8 कूलम। अगर हम आउटसाइड कंसीडर करें, यहाँ ले लें P, यहाँ भी 0 है, ओके। तो ये डिस्टेंस हम, ये तो कितना है 16। अब इसमें देखिए x आप यहीं से अज्यूम कर लो, ये x है, यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 16 फ्रॉम दिस चार्ज, x माइनस 16, तो Vp2 इक्वल टू 0 1 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 8 अपॉन x प्लस माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 16। तो देखो सॉल्व करेंगे, 5 अपॉन x 3 अपॉन x माइनस 16, 5x माइनस 80 इक्वल टू 3x, इधर ले लें 2x इक्वल टू 80 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 8 कूलम। दोनों कंडीशंस में फाइंड कर लिया। आउटसाइड लें तो 40 सेंटीमीटर पर हो सकता है, साइड लें बिटवीन देम लें तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर, ओके ओके। हाँ जाइए आप। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी, देखिए ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। ये आपको दिखाना होगा सर्किट में 8 माइक्रोफैरड, ये दोनों पैरेलल में हो गए 2 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड इसके सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया ना इसके, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, ये 2 इसके सीरीज में हो जाएगा, तो 2 and 2 क्या हो जाएगा बेटा 1 माइक्रोफैरड। फाइनली 1 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, ओके पैरेलल में, तो देयर इक्विवेलेंट 1 + 4 5 माइक्रोफैरड। अब डिटेल में आप दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 माइक्रोफैरड, दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया ये बेटा 2 माइक्रोफैरड, करें ये 8 माइक्रोफैरड, दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया 8 माइक्रोफैरड। इस तरह से आप ऑन द पेपर एग्जाम शीट में दिखाना होगा, 2 and 2 इन सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ 1 माइक्रोफैरड, 8 and 8 सीरीज, इनका इक्विवेलेंट क्या हुआ 4 माइक्रोफैरड, ओके। अब ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट 1 + 4 = 5 माइक्रोफैरड। दैट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट, define electrostatic potential, drive an expression for potential due to a point charge at a distance are very simple. Define electrostatic potential, define electrostatic potential, you know that from basic theory जो मैंने आपको काफी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। The electrostatic potential at a point in electric field is equal to the amount of work done due to moving or displacing an unit positive charge from infinite to that point against to the electric field. Again listen to me, the electrostatic potential at a point in electric field is equal to the amount of work done due to moving or displacing an unit positive charge from infinite to that point. That's clear. Let's see. A point charge Q located at origin, a point P at a distance OP equal to small r, where calculate the electric potential. For electric potential, imagine a Cartesian point
at infinite. The path from infinite to P consists with many smallest part, that is smallest part dx, its position x. Unit positive charge 1 coulomb moves displaced from infinite to steady point P against to the electric field. Then amount of work done. F dot of dx vector negative against to the electric field according to physical significance of EFI. Q naught E from basic theory, unit positive charge F vector is equal to E vector. ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए बेटा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो dw is equal to minus E vector dot of dx vector. EFI at point P due to point charge kq upon, in your mind, r square r cap. लेकिन देखिए बेटा अभी आपका पोजीशन कहाँ है, एट ए बी, इट्स पोजीशन x, तो r स्क्वायर प्लेस y x स्क्वायर x कैप, पुट इन इक्वेशन. तेजस्वी बात नहीं बेटा, माइनस के x स्क्वायर x cap dot of dx vector, you know that x cap dot of dx vector is only dx, so dw is equal to minus kq upon x square into dx. And unit positive charge moved or displaced from infinite to steady point P, total amount of work done is called electrostatic potential. So we integrate dw from infinite to P minus kq upon x square dx, position of infinite, position of point P small r, dx represent the integration with respect to x, then x is a variable quantity, another quantity r behave as a constant quantity with respect to x, kq constant, minus and kq taking outside from integration sign, minus kq, x raised to the power minus 2 dx infinite to r, इंटीग्रेशन माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा x रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 फाइनाइट टू r माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू x रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन x, अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r. ये आपका बेसिक रिजल्ट आ गया भैया. Equation number 4. So electrostatic potential at a point due to point charge kq upon r. That's clear. Next, prove that the electric capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to the area of plate and inversely proportional to the distance between them. Very simple. ये प्रूव करने के लिए आपको इसका बेसिक रिजल्ट फाइंड करना होगा. तो देखिए parallel plate capacitor, it consists with two conducting plates having equal and opposite charges, means that an arrangement of two conducting plates are arranged parallel to each other and they have equal and opposite charges. An arrangement of two conducting parallel plates having equal and opposite charges is called parallel plate capacitor. Let us consider two conducting plates P1 and P2 are separated by a small distance d and arranged parallel to each other. Plate P2 is earthed. Plate P1 is connected to positive potential, acquires some positive charge from source. Closure surface of P2 acquires negative charge and further surface acquires positive charge due to induction. Positive charge on further surface is removed to the earth. You know that. For determination of capacitance, we obtained potential. For potential, we obtained EFI. EFI at any point between plates due to first plate outwards
positive charge. Due to second plate inwards, when your steady point lies, देखो EFI due to conducting plate sigma upon epsilon naught, but your steady point lies very near to the conducting plate sigma upon 2 epsilon naught, जो डिटेल थ्योरी में मैंने आपको ड्राइव करके बताया हुआ है. ओके, कैपेसिटर्स का जो अरेंजमेंट है इसमें टू कंडक्टर्स को, टू कंडक्टिंग प्लेट्स को, एयर प्लेट्स लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्मॉल डिस्टेंस पर अरेंज किया जाता है. तो ये अंडरस्टूड है कि आपका स्टडी पॉइंट वेरी नियर टू द कंडक्टिंग प्लेट्स, लाइज नियर टू द कंडक्टिंग प्लेट्स. ये अप्लाई करेंगे तो नेट ईएफआई क्या हो गया भैया, E इक्वल टू E1 प्लस E2, ये ट्वाइस ऑफ E1 तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये रिजल्ट आ गया, देखिए बेटा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फाइनली जो रिजल्ट होगा बिटवीन प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन EFI एंड पोटेंशियल V अपॉन D, तो V इक्वल टू ED सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D. तो कैपेसिटेंस E इक्वल टू Q अपॉन V, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A, तो Q इक्वल टू सिग्मा A. Q का वैल्यू पुट कीजिए एंड पोटेंशियल का वैल्यू पुट कीजिए, तो C इक्वल टू सिग्मा A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. दिस कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. ये प्रूव हो गया ना बेटा. ये इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, अब वैसे पूछा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम Pm एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R, where epsilon R dielectric constant of medium, it is also denoted by K. That's clear. Okay, next, due to electric dipole obtain an expression of for electric potential at a point, draw necessary diagram. Due to electric dipole obtain an expression for electric potential at a point, draw necessary diagram. अब देखिए इंडिविजुअली बेटा, इंडिविजुअली आपको ऑन एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन तो दे नहीं रखा, तो फिर हम कहां फाइंड करेंगे, एट पॉइंट P आर थीटा, एट पॉइंट P आर थीटा. ओके, पोलर फॉर्म तो आपको इंपॉर्टेंट भी बता रखा है मैंने. तो देखिए लेट अस कंसीडर an electric dipole placed on YY axis. Positive and negative charges of dipole are located at same distance from origin. A point P at a distance R, where calculate the potential. Line OP makes an angle theta with axial line of dipole. ये R theta हो गया बेटा आपका. ओके, तो आपको गिवन क्या है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू स्मॉल a, OP इक्वल टू R. Again, let us consider an electric dipole located on y-axis. Positive and negative charge of dipole is placed at same distance from origin. A point P at a distance OP equal to small r. Calculate the potential. Line OP an angle of theta with axial line of dipole, because you know that direction of axial line from negative charge to positive charge and direction of dipole moment P vector. ओके, तो देखिए P वेक्टर डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये P आपका स्टडी पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे. तो देखिए you know that from basic theory of potential V equal to KQ upon R means for determination of potential at any point we need only one charge. Dipole consists with two charges, तो दोनों चार्जेज के लिए इंडिविजुअली सेपरेटली फाइंड करेंगे. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P due to positive charge KQ upon, in your mind, R distance of steady point from charge. पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हमें नॉन नहीं है, अननोन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
फिजिक्स में तो बहुत सिंपल है, जो गिवन नहीं है अज्यूम कर सकते हो आप। तो आपने एपी R1 अज्यूम कर लिया भैया, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज K माइनस क्यू अपॉन, नेगेटिव चार्ज से भी डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है, ये भी आपने अज्यूम कर लिया, Bp इक्वल टू R2। दैट्स क्लियर। नेट पोटेंशियल, ये जो आपको मैं कंसिडरेशन बोल रहा हूं ये सारा आपको कॉपी में ड्राफ्टिंग करना होगा। तो के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2, तो के क्यू कॉमन ले लीजिए, 1/R1 माइनस 1/R2, ये आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन ये वैलिड नहीं है भाई, फिजिक्स ने आपको सेपरेट बहुत ही अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर रखा है कि आप कुछ भी अज्यूम कीजिए, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि फाइनली रिजल्ट में आपने जो भी अज्यूम किया है वो गिवन नहीं होना चाहिए, यानी उसको आपको रिमूव करना होगा, मींस उसको कन्वर्ट करना होगा इन फॉर्म ऑफ गिवन क्वांटिटीज। तो R1 एंड R2 आपको ने अज्यूम किए हैं, इन्हें आपको कन्वर्ट करना होगा इन टर्म ऑफ R, इन टर्म ऑफ स्मॉल a एंड इन टर्म ऑफ थीटा। आपको 3 क्वांटिटी गिवन है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ R1 एंड R2 इन टर्म ऑफ स्मॉल r, स्मॉल a एंड थीटा। दैट्स क्लियर। तो देखिए वेक्टर प्रोसेस से हम अप्लाई करते हैं, फ्रॉम बेसिक थ्योरी ऑफ पोजीशन, एरो हेड ऑलवेज टुवर्ड्स द स्टेडी पॉइंट, योर स्टेडी पॉइंट P, the position of AP, OP, BP, arrowhead towards the point P. That's clear. From triangle OAP, देखिए आप OAP both are in same order, OP in opposite order. तो OP vector is equal to OA vector plus AP vector, R vector is equal to A vector plus R1 vector. तो R1 vector is equal to R vector minus A vector. टेकिंग मॉड, आपको R1 फाइंड करना है, टेकिंग मॉड एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, R1 वेक्टर फुल स्क्वायर R माइनस ए, R माइनस ए। तो देखिए बेटा ये क्या हुआ, R1 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2R वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, R1 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस ऑफ थीटा, R1 स्क्वायर टेकिंग कॉमन R स्क्वायर, a square upon R square minus 2a cos of theta upon R. You know that R is greater than small a, then a square upon R square is negligible. That's clear. So R1 square is equal to R square 1 plus 0 minus 2a cos of theta upon R, taking square root R 1 minus 2a cos of theta upon R होल रेज टू दी पावर 1/2। तो आपका देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, R1 का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब R2 फाइंड करेंगे। अब आप क्या फाइंड करेंगे, R2 फ्रॉम ट्राइंगल OBP। देखो BO OP सेम ऑर्डर, BP अपोजिट ऑर्डर, तो फ्रॉम ट्राइंगल BOP BP वेक्टर इक्वल टू BO वेक्टर प्लस OP वेक्टर, R2 वेक्टर BO A वेक्टर R वेक्टर, टेकिंग मॉड both side and squaring both side। तो ये क्या हुआ बेटा, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A वेक्टर डॉट ऑफ R वेक्टर, एक्सपेंशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos ऑफ थीटा, टेकिंग कॉमन R स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2A cos ऑफ थीटा अपॉन R। तो ये अगेन नेग्लिजिबल होगा बेटा, R2 स्क्वायर R स्क्वायर 0 1 प्लस 2A cos ऑफ थीटा अपॉन R, टेकिंग स्क्वायर रूट R 1 प्लस 2A cos ऑफ थीटा अपॉन R होल रेज टू दी पावर 1/2। ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इक्वेशन 2 and 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन 2 and 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, P इक्वल टू KQ R1 क्या है बेटा, R 1 माइनस 2A cos अपॉन R होल पावर -1 1 प्लस 2A cos ऑफ थीटा अपॉन R होल पावर 1/2 है बेटा, सॉरी ओके। तो देखिए 1/R कॉमन ले लेंगे,
इस टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करिए, cos ऑफ थीटा अपॉन आर होल रेज टू दी पावर -1/2, 1 + 2a cos ऑफ थीटा अपॉन आर होल रेज टू दी पावर -1/2 according to binomial theorem 1 + x raised to the power n, 1 + nx and so on. फिजिक्स में हम 2 टर्म तक यूज करते हैं बिकॉज स्मॉल r इज ग्रेटर देन a, देन a अपॉन r होल स्क्वायर एंड more power terms are negligible, तो देखिए बेटा aq अपॉन r 1 + nx माइनस प्लस 1/2 2a cos ऑफ थीटा अपॉन r, आगे के टर्म सभी नेग्लिजिबल हो जाएंगे बेटा। 1 + nx प्लस एंड माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ, 2a cos ऑफ थीटा अपॉन r, आगे के सारे टर्म क्या होंगे, नेग्लिजिबल। देखिए बेटा ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो v = aq अपॉन r 1 + cos थीटा अपॉन r -1 + a cos थीटा अपॉन r, माइनस माइनस 1 एंड -1 कैंसिल, kq अपॉन r एंड 2a cos ऑफ थीटा अपॉन r। तो q × 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो kp cos ऑफ थीटा अपॉन r², ये आपका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, तो v is inversely proportional to r²। okay, in this condition draw a graph between v and r, we get hyperbolic curve। इसको एक टर्म और आगे बढ़ा सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय r एंड डिवाइडेड बाय r, तो r³ हो जाएगा बेटा pr cos थीटा। तो ड्यू टू cos थीटा अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट p वेक्टर डॉट r वेक्टर। अब देखिए व्हेन योर स्टडी पॉइंट lies on axial line, when point P lies on axial line, तो थीटा क्या होगा बेटा, 0। तो v = kp cos of 0 अपॉन r², तो v = kp अपॉन r²। क्वेश्चन नंबर 6, when point P lies on इक्वेटोरियल लाइन, तो थीटा क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। तो v = kp cos of 90 upon r², you know that cos 90 = 0। That's clear। In the parallel combination of capacitors, establish the formula of capacitance, also draw necessary circuit diagram। Parallel combination of capacitors, okay, so you know that। तेजस्वी बेटा नो टॉकिंग, बातें नहीं करेंगे आप, ओके बेटा। देखिए बेटा when first plate of all capacitors are connected to a common point and second plate of another capacitors are connected to another common points, then capacitors are said to be in parallel combination। Let us consider n capacitors of capacitance C1 C2 C3 up to Cn are connected in parallel combination and V be the applied potential across the parallel combination। अब देखिए बेटा ई में प्लग अप्लाई करें तो यहां से चार्ज फ्लो होगा, यहां तक तो चार्ज सेम होगा, n ब्रांचेज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर्स आर डिफरेंट, Q1 Q2 Q3 up to Qn। on first plate positive charge, on second plate negative charge due to principle of capacitors। all terminals, all first plate connected to a common point connected to positive potential, second plates connected to negative potential, that means potential difference across all capacitors remains same or constant and equal to the applied
पोटेंशियल। तो देखिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा। कॉम्बिनेशन के लिए हमें फाइनली रिजल्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो जिस क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उस पर कभी स्टडी नहीं की जाती। रिमेनिंग क्वांटिटी पोटेंशियल एंड चार्ज, पोटेंशियल सेम है तो सेम क्वांटिटी पर स्टडी नहीं की जाती, चार्ज डिफरेंट है तो हम स्टडी किस पर करेंगे, चार्ज पर। तो आपका स्टडी किस पर होगा बेटा, चार्ज पर। दैट्स क्लियर। तो देखिए, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, Q1 is equal to C1V on C2, Q2 is equal to C2V on C3, Q3 is equal to C3V up to on Cn, Qn is equal to Cnv. You know that charge is a scalar quantity. Relative scalar quantity means that charge is an additive quantity. Total charge is equal to algebraic sum of individual quantities. तो टोटल चार्ज क्या हुआ बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। सभी को ऐड करेंगे तो V तो कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn इंटू V। पोटेंशियल को लेफ्ट में ले लीजिए आप, तो Q अपॉन V, C1 plus C2 plus C3 up to Cn, number second. If P be the equivalent capacitance in parallel combination, then Q is equal to CV, so Q upon V is equal to C. Put in equation second, so C is equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn. From equation third, equivalent capacitance in parallel combination is equal to the algebraic sum of individual capacitance of all capacitors. From equation third, equivalent capacitance in parallel combination is equal to the algebraic sum of individual capacitance of all capacitors. Okay. Next, define capacitor, draw circuit diagram and obtain a relation for equivalent capacitance in the series combination of capacitors. Very simple. Define the capacitor. You know that an arrangement of two conductors having equal and opposite charges and they are separated by very small distance, it's called capacitor. An arrangement of two conductors having equal and opposite charges and they are separated by very small distance, it's called capacitor. Series combination, let's see. C1, C3, Cn. When second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor and so on, then capacitors are said to be in series combination. When second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor and so on, then capacitors are said to be in series combination. Let us consider n capacitors of capacitance C1, C2, C3 up to Cn are connected in series combination and V the applied potential across the सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो की में प्लग अप्लाई करेंगे, चार्ज फ्लो, तो चार्ज सभी पर सेम रहेगा बेटा। ऑन फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, ऑन सेकंड प्लेट नेगेटिव बाय प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम ऑल कैपेसिटर्स बट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बेटा, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q अपॉन C। चार्ज तो बेटा सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो पोटेंशियल across the capacitors in series combination V1, V2, V3 up to Vn different होगा। For combination with determination of equivalent capacitance, C का फाइनली रिजल्ट फाइंड करना है। नो स्टडी ऑन C। रिमेनिंग क्वांटिटी पोटेंशियल एंड चार्ज रिमेन सेम, नो स्टडी ऑन चार्ज। तो स्टडी आपका किस पर होगा, पोटेंशियल पर। दैट्स क्लियर। ओके, तो देखिए बेटा, पोटेंशियल difference across
कैपेसिटर अक्रॉस कैपेसिटर C1, तो देखिए V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 अक्रॉस C2, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 अक्रॉस C3, V3 इक्वल टू Q अपॉन C3 अक्रॉस Cn, Cn इक्वल टू Q अपॉन N. Equation number first, potential is a scalar quantity, net potential, algebraic sum of all potentials, ऐड करेंगे तो बेटा Q कॉमन आ जाएगा ना, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn. Q को लेफ्ट में ले लीजिए बेटा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn. If equivalent capacitance in series combination, if C be the equivalent capacitance in series combination, you know that Q is equal to CV implies that V upon Q is equal to 1 upon C. Put in equation second, 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 up to 1 upon Cn. Equation number third, from equation third, 1 upon C, the reciprocal of equivalent capacitance in series combination is equal to the algebraic sum of reciprocal of individual capacitance of all capacitors. That's clear? Okay, thank you.